Assalamu alaikum dear students. Welcome back once again to my YouTube channel. Today we are going to discuss about class 9th chemistry. In this class 9th chemistry, we have already taken up the chapter, that's chapter number 3, atoms and molecules. That belongs to the term 2nd and is the first unit of the term 2nd syllabus. The name of the unit is atoms and molecules. In that very unit, we had already taken up that unit, and we had already made the part 1 of this lecture series of the 9th class. So in that very video lecture, we had already discussed about the introduction of the atoms, what were the various mythological theories about the atoms, and what were the recent theories about the atoms. Now, nextly, we have also discussed it in that very video lecture. We have already discussed that whenever two things chemically combine, whenever there happens a chemical reaction, whenever two things combine chemically, they are governed by certain laws. They are governed by certain rules and laws. These laws are of various types. We have generally taken up the two laws. The first law was law of conservation of mass. The law of conservation of mass, what was that and what it stated and what it described and what was all about it, we had already discussed in the part 1st of the lecture series. Now, the second law which follows the chemical combination. Whenever there is a chemical combination, whenever two things combine chemically, they are governed by two major laws. The first law we had discussed. The second law is law of constant or definite proportion. The second law which govern the chemical combination, जो law जब भी chemical combine होते हैं, जब भी दो चीजें, चाहे वो element हो, compound हो, molecule हो, atom हो, कुछ भी हो, जब वो chemically आपस में मिलते हैं, जब chemical reaction होती है, तो दो तरीकों से दो rules होते हैं, दो laws होते हैं. तो पहला law जो था law of conservation of mass, वो हमने part 1 में discuss कर लिया. अब जो दूसरा law है, जो दूसरा rule है, वो है law of constant और definite proportion. अब ये rule क्या बोलता है, अब ये law क्या बोलता है, वो हम आज discuss करेंगे. This law was given by the chemistarian, the scientist named J.L. Proust in 779. This law was given by J.L. Proust in 779. What the law states and what the law is all about, let's start the lecture. So, मैंने आपको पहले ही बताया, this law was given by J.L. Proust in 1779. So, the J.L. Proust actually did, इसने क्या किया? इसने बहुत सारे chemical compounds को analyze किया. बहुत सारे केमिकल कंपाउंड मतलब कोई भी केमिकल चीज, कोई भी केमिकल कंपाउंड, से फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, अमोनियम, पोटेशियम साइनेट, कोई भी कंपाउंड, जो कोई भी चीज दुनिया में है, कोई भी एग्जांपल आप कुछ भी ले सकते, एसिड, बेस, साल्ट, कोई भी इंडिकेटर, कुछ भी, जो कोई भी चीज है दुनिया में, एसिड है, बेस है, कोई भी कंपाउंड है, यूरिया है, कुछ भी है, जो कोई भी केमिकल कंपाउंड है, इसने क्या किया? इसने इन केमिकल कंपाउंड्स को एनालाइज किया. मैंने आपको पहले ही बताया कि केमिकल कंपाउंड कोई भी चीज होती है, वाटर है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, अमोनिया है, पोटेशियम साइनेट है, कोई भी चीज, कोई भी केमिकल चीज केमिकल कंपाउंड होती है. अब ये इसने इन केमिकल कंपाउंड्स को, से फॉर एग्जांपल मैं दो एग्जांपल्स ले लेता हूं, मैं सिंपल दो एग्जांपल लेता हूं, HCl या अमोनिया या कोई भी वाटर, सिंपल इज वाटर, या कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे केमिकल कंपाउंड है. केमिकल कंपाउंड मीन्स केमिकल, कोई भी केमिकल चीज. अब इसने क्या किया? इसने इन केमिकल कंपाउंड्स को एनालाइज किया. हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन. ये वो रूल है, वो लॉ है जो गवर्न करता है, जब भी कोई की चीज केमिकल रिएक्शन करती है, उसको ये गवर्न करता है, उसको ये डिफाइन करता है. तो हमने क्या बताया, J.L. Proust ने ये लॉ दिया था. उसने क्या किया? उसने केमिकल कंपाउंड्स को एनालाइज किया. केमिकल कंपाउंड मतलब कोई भी केमिकल चीज,
वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, एसिड, बेस, सोडियम क्लोराइड, वाटर, कोई भी चीज सारे केमिकल कंपाउंड है। केमिकल चीज कोई भी, इसने इन केमिकल कंपाउंड्स को एनालाइज किया, इनको ध्यान से पढ़ा, समझा, अंडरस्टैंड किया। तो अंडरस्टैंड करके इसने क्या किया, इसने कुछ एक चीजें इनसे पता कर ली, अक्स कर ली, इसको कुछ चीजें मालूम पड़ी। जब जेल प्रोस्ट ने इन केमिकल कंपाउंड्स को एनालाइज किया तो इसने क्या देखा कि ये जो केमिकल कंपाउंड्स है ये कुछ एलिमेंट से बने हुए हैं। ये यूं कह लीजिए सेम एलिमेंट से बने हुए हैं। फिलहाल आप देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल H2O वाटर है या कार्बन डाइऑक्साइड। चलो ये तो एग्जांपल लेते हैं क्योंकि सिंपल कंपाउंड्स है, इन्हीं से आपको सब कुछ समझ आएगा। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसने क्या बताई, तो ये हाइड्रोजन का बना है, ऑक्सीजन का बना हुआ है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, कार्बन का बना हुआ है, ऑक्सीजन का बना हुआ है। तो इसने पहली चीज के एनालाइज की, पहली चीज के इन केमिकल कंपाउंड को जब इसने अंडरस्टैंड किया, पढ़ा, समझा, तो इसको जो पहली चीज पता चली कि ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये कुछ एलिमेंट से बने होते हैं, सेम एलिमेंट। वो चीज क्या है, ये कैसे बने होते हैं, और नंबर फर्स्ट इनकी अमाउंट जो होती है सेम होती है। तो जब जेल प्रोस्ट ने बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स को एनालाइज किया, समझा, अंडरस्टैंड किया, इसने दो चीजें पता कर ली। एक तो ये सेम एलिमेंट्स के बने होते हैं, दूसरा इन एलिमेंट्स की अमाउंट भी सेम होती है। जो ये केमिकल कंपाउंड होते हैं, चाहे कोई भी केमिकल कंपाउंड हो, ये सेम एलिमेंट्स के बने होते हैं और इनकी अमाउंट भी सेम होती है। अब ये सेम एलिमेंट और सेम अमाउंट क्या है, ये आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। पहले मैं आपको थोड़ी एक डेफिनेशन देता हूं, एक स्टेटमेंट देता हूं इस लॉ का, इस रूल का, फिर मैं आपको ये चीजें समझाता हूं। तो ये रूल का स्टेटमेंट क्या था कि कोई भी केमिकल कंपाउंड एनी केमिकल कंपाउंड is made up of same elements combined in a definite or constant, or you can say sometimes equal. Any chemical compound is made up of same elements combined in a definite constant or equal amount by mass. इसको मैंने कोट में क्यों रखा, क्योंकि जब भी आप एग्जाम में कोई स्टेटमेंट लिखते हो, कोई लॉ लिखते हो, कोई रूल लिखते हो, कोई डेफिनेशन लिखते हो साइंस की, आप कोट्स में लिखते हो। फॉर एग्जाम्पल, दिस लॉ स्टेट्स दैट any chemical compound is made up of same elements combined in a definite constant or equal amount by mass. वही चीज जो मैंने यहाँ पे बताई, जो इसने एनालाइज की, सेम एलिमेंट्स, सेम अमाउंट, डेफिनेट कांस्टेंट, इक्वल और सेम, आप कुछ भी कह लीजिए, बाय मास, मास के हिसाब से कि इसका कितना मास है, इसका कितना मास है, वो मैं अब आपको समझाऊंगा। बट जो दो चीजें जेल प्रोस्ट ने एनालाइज की कि कोई भी केमिकल कंपाउंड, इसमें एलिमेंट्स भी सेम होते हैं और उन एलिमेंट्स की अमाउंट भी सेम होती है। इस बेसिस पे इसने एक लॉ दिया, उसका नाम रखा लॉ ऑफ डेफिनेट और केमिकल कंपोजिशन। तो एग्जांपल्स में मैं आपको समझाता हूं। लॉ का स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये सिंपल स्टेटमेंट है, चाहे कंजर्वेशन ऑफ मास हो या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन हो। ये स्टेटमेंट सिंपल है, आपको टिप ऑफ द टंग होने चाहिए क्योंकि आगे चल के ये हमें और जरूरत पड़ने वाले। तो मैं एग्जांपल ले लेता हूं, सिंपल एग्जांपल, वही वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की। तो रूल क्या था, लॉ क्या था, कोई भी केमिकल कंपाउंड ये बना होता है सेम एलिमेंट्स और उन एलिमेंट्स की अमाउंट भी सेम होती है। से फॉर एग्जाम्पल, मैंने वाटर लाया, टैप वाटर लाया, मैंने ओशन से लाया, मैंने लेक से लाया, मैंने वेल से लाया। सोर्स में बता रहा हूं, ये चीजें क्या है, सोर्स। मैं इस वाटर को किसी भी सोर्स से ले लेता हूं, टैप नलके से लेता हूं, समंदर से लेता हूं, झील से लेता हूं, कुएं से लेता हूं, कहीं से भी मैं पानी लाऊंगा।
सोपोर से, हंदवारा से, बांडीपुरा से, अमेरिका से, सऊदी अरेबिया से, कहीं से भी वाटर का सोर्स कोई भी हो, कहीं से भी लाओ, ये बना होगा H2O, H2O, H2O एंड H2O। आप वाटर कहीं से भी लाओ, इसमें जो एलिमेंट्स है, किस किस एलिमेंट का बना हुआ है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आप वाटर कहीं से भी लाओ, किसी भी सोर्स से लाओ, कहीं किसी ओरिजिन से लाओ, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना होगा। सो पहला रूल क्या था कि सेम एलिमेंट्स। तो एक केमिकल कंपाउंड है वाटर, आप ये कहीं से भी लाओ, किसी जगह से लाओ, किसी ओरिजिन से लाओ, किसी सोर्स से लाओ, ये हमेशा सेम एलिमेंट से बना होगा। ऐसा आपने कभी देखा है? आपने समंदर से पानी लाया हो, वो H2O5 का बना होगा, उसकी फार्मूला H2O5 होगी, या उसमें H2OS4 होगा। एलिमेंट सेम होंगे, H और ऑक्सीजन, H और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। सोर्स कोई भी हो, ओरिजिन कोई भी हो, वाटर कोई भी हो। हाँ, जो आपके दिमाग में कंफ्यूजन आएगा कि इसमें तो सॉल्ट होता है, बट मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे प्योर वाटर की। अब प्योर वाटर कहीं से भी लाओ, लैब से, घर से, कहीं से भी, ये हमेशा सेम एलिमेंट्स का बना होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। वाटर कहीं से भी लाओ, ये सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भी बना होगा। इसी तरह अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं, ये बना है कार्बन और ऑक्सीजन से। आप फॉर एग्जांपल चारकोल को बर्न करो, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ये भी कार्बन एंड ऑक्सीजन का बना हुआ है, सेम एलिमेंट। आप कैल्शियम कार्बोनेट लाओ, इसको डिकम्पोज करो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निकलेगा, सॉरी, यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ये भी कार्बन एंड ऑक्सीजन का बना हुआ है। अब एयर से कार्बन डाइऑक्साइड देखो, जो 0.03% में मौजूद है, यहाँ जो भी इसकी अमाउंट है, तो ये उसमें भी ये कार्बन एंड ऑक्सीजन का बना हुआ है। तो क्या था रूल, क्या लॉ था कि आप कंपाउंड कोई भी हो या कहीं से भी लाओ, कोई भी ओरिजिन, कोई भी सोर्स, ये सेम एलिमेंट्स का बना होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। दैट मीन्स नंबर फर्स्ट इज एनी कंपाउंड इज मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स। आप कंपाउंड कहीं से भी लाओ, कोई ओरिजिन हो, कुछ भी हो, ये सेम एलिमेंट्स का बना होगा। ठीक। नंबर सेकेंड, ये एग्जाम्पल है H2O की बात कर रहे हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, क्योंकि ये सिंपल कंपाउंड्स है तो अच्छे से समझ आएगा। तो अब ये तो सेम एलिमेंट्स कहीं से भी लाओ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने होंगे। अब अगर आप दूसरा पॉइंट देखो, आपने वाटर कहीं से भी लाया, तो ये 1:8 रेशियो में होगा बाय मास। मास इसका रेशियो, इसका जो मास रेशियो है 1:8 होगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने समंदर का पानी लाया 9 ग्राम, आपने समंदर से 9 ग्राम पानी लाया। अगर आप इसको अब ब्रेक डाउन करोगे, इस पानी को ब्रेक डाउन करोगे, हाइड्रोजन अलग निकालोगे, ऑक्सीजन अलग निकालोगे, कैसे? इलेक्ट्रोलिसिस, बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट, सिंपल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आपको आगे चल के समझ आएगी 10th में जब आप आ जाओगे। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग निकलेगा। जब आप इसको ब्रेक करोगे तो इस हाइड्रोजन 1 ग्राम होगा, ऑक्सीजन 8 ग्राम होगी। यही है 1:8 बाय मास। इसका मास 1 ग्राम होगा, इसका मास 8 ग्राम होगा। से फॉर एग्जांपल आपने 100 ग्राम लाया, तो ये 11 ग्राम निकलेगा, ये 89 ग्राम निकलेगा। अगर आपने 9 ग्राम लाया था, उसमें 1 ग्राम हाइड्रोजन है, 8 ग्राम ऑक्सीजन है, तो 1:8। अगर आपने 100 ग्राम लाया, तो यहाँ पे क्या होगा, 11 ग्राम हाइड्रोजन होगा, 89 ग्राम ऑक्सीजन होगा। सो अगर मैं इसको मैथमेटिकली सॉल्व करूं, 11 1 89, सो 88 ग्राम्स होगा ऑलमोस्ट, क्योंकि ये 88 पॉइंट समथिंग होगा, तो इसको हम जनरली फिर 88.8 या कुछ होगा, या 11 पॉइंट कुछ होगा। तो पॉइंट्स की हम बात नहीं करें, हम सिंपल होल नंबर्स में इसको देखेंगे, तो ये 1:8 में ही वापस आएगा। सो दैट मीन्स आप वाटर कहीं से भी लाओ, कोई भी ओरिजिन हो, हाइड्रोजन 1 ग्राम में होगा, ऑक्सीजन 8 ग्राम होगा। मतलब 1:8 हाइड्रोजन का 1 पार्ट होगा, तो ऑक्सीजन के 8 पार्ट्स होंगे। तो मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझा, अगर 9 ग्राम होगा तो 1 ग्राम हाइड्रोजन होगा, 8 ग्राम ये
ऑक्सीजन होगा। अगर 100 ग्राम होगा तो 11 ग्राम ये होगा, 88 या 89 ग्राम ऑक्सीजन होगा। दैट मीन्स एक हिस्सा हाइड्रोजन होगा, 8 हिस्से ऑक्सीजन के होंगे। अब कहीं से भी वाटर ले आओ, एक हिस्सा हाइड्रोजन का होगा और 8 हिस्से ऑक्सीजन के। हिस्से मतलब वजन के हिसाब से, एक हिस्सा वजन का हाइड्रोजन का होगा, 8 हिस्से ऑक्सीजन के होंगे। ये एक सेम अमाउंट रहता है, कोई भी कहीं से भी आप केमिकल कंपाउंड ले आओ। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड 3:8 रेशियो, 3 पार्ट्स ऑफ मास हाइड्रोजन के होंगे, कार्बन के होंगे और ऑक्सीजन के 8 पार्ट्स ऑफ मास होंगे। मास के हिसाब से 3 हिस्से कार्बन के होंगे और 8 हिस्से मास के हिसाब से ऑक्सीजन के होंगे। और ये सेम रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता है। आप कार्बन डाइऑक्साइड कहीं से भी ले आओ। ठीक। नाउ क्वेश्चन इज, अगर यहाँ पे मुझे ऑक्सीजन 2 है, अगर आप मुझे कार्बन डाइऑक्साइड कहीं से CO3 ला के दिखाओगे तो मैं मानूंगा लॉ वायलेट हो रहा है, लॉ खत्म हो रहा है, लॉ फेक है। अगर आप वाटर मुझसे कहीं से H3O लाओगे, अगर आप मुझे बताओगे 2 हिस्से हाइड्रोजन के और 10 हिस्से ऑक्सीजन के, तो ये लॉ गलत है। लेकिन ये कभी नहीं होता, ये लॉ सुटेबल है, स्ट्रांग है, इसलिए इसका जो इन नटशेल, अब जनरली जो हमें समझ आया वो चीजें हम नटशेल में डिफाइन करेंगे। तो हमें 2 चीजें जो समझ आई, एक तो आप कंपाउंड कोई भी हो कहीं से भी ले आओ, इसमें एलिमेंट सेम होते हैं और उन एलिमेंट्स की अमाउंट भी सेम होती है। ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है। ठीक। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये सोचता है कि H2SO4 से फॉर एग्जांपल है, या कार्बन डाइऑक्साइड ही जो हमने लिया, हम तो बोलते हैं कार्बन का 1 एटम है और ऑक्सीजन के 2 एटम है। लेकिन मैं तो यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ये ऑक्सीजन एलिमेंट है, 2 एलिमेंट, ऑक्सीजन 1 एलिमेंट है, कार्बन 1 एलिमेंट है। हम तो एटम्स की बात ही नहीं कर रहे। ये कंसेप्ट है। ये जो O2 है ये है एटम, एलिमेंट ऑफ ए कंपाउंड। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये एलिमेंट ऑफ ए कंपाउंड है। अगर मैं सिर्फ O2 लूं तो ये बन जाएगा एटम ऑफ एन एलिमेंट। यहाँ पे जो CO2 है ये ऑक्सीजन जो है एलिमेंट ऑफ ए कंपाउंड है। अगर O2 है तो ये एटम ऑफ एन एलिमेंट है। ये चीजें आप होम असाइनमेंट है, होमवर्क है, ये चीजें आप खुद डिफरेंशिएट कर लो, खुद अंडरस्टैंड करो और ये आपको अच्छे से समझ आएगा। Now, thank you for watching my video. In the next video, we shall be discussing about Dalton's atomic theory. Thank you.